सत श्री अकाल बेटा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਯਾਨੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੋਲੀਗॉन्स। या उस तो पहले भी देखिए ताकि समझना प्लेन सरफेस की है, टू डायमेंशनल की चीज है। देखो ब्लैक बोर्ड का सरफेस जिहड़ा है की है, एक समतल है, प्लेन सरफेस है, टू डायमेंशन दे विच है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की असीं गल कर रहे हैं। पहले पॉलीगॉन नूं समझिए, पॉलीगॉन्स की ने। इस दे नाल नाल बेटा साडा जिहड़ा चैनल है यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड राजविंदर सिंह, इनू सबसक्राइब करो। साडा जिहड़ा ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.mathsworld.in, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ? 3 ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਆਫ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ 4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਚਤੁਰਭੁਜ। ਯਾਨੀ ਭੁਜ ਮੈਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਚਤੁਰ ਮੈਨੇ 4, यानी इंग्लिश ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਐਨੀ 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ 5 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਟਾਗਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਭੁਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। 6 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ 6 ਭੁਜ, 7 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੈਪਟਾਗਨ, 8 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਕਟਾਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੋਨੈਗਨ, ਔਰ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਟੈਕਾਗਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ n ਸਾਈਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੋਲੀਗਨ ਯਾਨੀ ਐਨਗਨ, ਬਹੁਭੁਜ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੋਲੀਗਨ। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲ, ਵਿਕਰਨ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. एक पॉलीगॉन है ABCD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। A और C ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਈਨ, D और B ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲਸ। ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ। ਕਨਕੇਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਨਵੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ। For example, here is the example of the convex polygon, or here is the example of concave. अंदर जिहड़ा है साइड बाहर वाल नूं अंदर वाल। एक साडे कोल टर्म यूज होंदी है सम दे विच रेगुलर एंड इररेगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज रेगुलर? जेड़े पॉलीगॉन जिहड़ा है वो इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल होएगा, यानी ਉਹਦੇ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। then that polygon is called irregular polygon। for example ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। that polygon is called a regular polygon and polygon which is not regular is called the irregular polygon। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮ ਅਤੇ ਅਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਆਫ the angle of a quadrilateral, measure of the angle of a quadrilateral is 360 degree। यानी है 4 एंगलों का जोड़ कितना होएगा इंटीरियर एंगल का? 360 डिग्री। देखो एक छोटी एग्जांपल लेके करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल जो मान लो एक डायगोनल इत्थे पा लेंगे हैं AC, दो ट्रायंगल बन गए ABC एंड ADC।
ट्रायंगल दे एंगल दा सम तो मैनूं पता 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। वही गल तो मैं इत्थे लिखी है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बेटा साडी टेक्स्ट बुक है 8th क्लास की, ਉਹਦੀ एक्सरसाइज है 3.1, ਉਹਦੇ सम्स कुछ करने हैं। थर्ड सम है सम ऑफ द मेजर ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगॉन की है। सम ऑफ द मेजर ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगॉन साडे को कितना आंदा है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसे तरीके एक और देखते हैं, एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स। देखो जिन्नियां साइड्स ने ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ एंगल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ फाइंड आउट करते हैं। Here the formula is n minus 2 into 180 degree where n is the number of sides। ਹੁਣ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀਆਂ 7 ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एंगल ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, n7 ਸੀ 7 minus 2 into 180 degree that comes to 5 into 1 that is 900 degree। ਜੇ ਸਾਈਡਸ 8 ਹੋਣ ਤੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ n minus 1 into 180, n ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 8, 8 minus 2 into 180 that comes equal to 6 into 180 1080 डिग्री। जे 10 साइड्स ने 10 minus 2 into 180 8 into 180 that is 1440 डिग्री। ऐसी तरीके ਨਾਲ ਜੇ n साइड ऑफ पॉलीगॉन्स होण ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ n minus 2 into 180 ਤੇ that is the general formula to find out the angle sum of the convex polygon। ऐसी तरीके ਨਾਲ बेटा जे रेगुलर पॉलीगॉन साडे कोल होवे, कहंदा 3 साइड दा रेगुलर पॉलीगॉन नु की कहांगे ਅਸੀਂ ट्रायंगल्स पढ़ियां ने। ट्रायंगल 3 साइड ट्रायंगल हुंदी है, ਜਿਹੜੀ रेगुलर ट्रायंगल है ਜਿਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल। ਜਿਹਦੀ 4 ਸਾਈਡਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਕੁਅਰ। 6 ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ। ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, the sum of the angle of a quadrilateral is 360 degree। Here one quadrilateral ABCD is given, the angle first angle is 120 130 and 50 is given। we have to find out the fourth angle। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 360, 130 ਜਮਾ 120 ਜਮਾ 50 प्लस C is equal to 360 डिग्री। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 300 ਹੋ ਗਿਆ, यानी m मेजर ऑफ एंगल C की आ गया साढ़े को 360 माइनस 300 दैट कम इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसी तरीके ने 6 सम द डी पार्ट है। एक साइड को फिगर दी है, देखो रेगुलर की है 2 4 5 पेंटागन है। पेंटागन के पहले एंगल सम की निकलेगा, हुने ही फार्मूला करके 10 minus 2 into 180 डिग्री, यानी 5 minus 2 into 180 दैट कम टू 540 डिग्री। It means the sum of the angles of a regular pentagon that come equal to 540 degree। जे मान लो एक एंगल को x मान लिए तो 5 एंगल का जोड़ कितना होएगा 540। 5 गुना x is equal to 540, x is equal to 540 over 50 that equal to 108 degree। यानी each angle of a pentagon is regular pentagon, especially वर्ड देखो रेगुलर पेंटागन की गल हो रही है, तो each angle of a regular pentagon is 108 डिग्री। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, the sum of the measure of the exterior angle of a polygon is 360 degree। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की गल देखो, एक्सटीरियर पॉइंट कितना है थोड़ा ध्यान दी ट्रायंगल की चीज समझिए। ये जिहड़े एंगल they are called interior angle which are inside the sides of the triangle, और ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ that is called exterior angle। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 360 ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਕਾਗਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 360 डिग्री। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। we have to find out the angle exterior angle of regular hexagon। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦਾ exterior angle ਦਾ ਸਮ 360 ਹੈ, और रेगुलर हेक्सागन है इट मीन ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ एंगल बराबर लेट इट बी x। मान लेने भी है एंगल ਜਿਹੜੇ ਨੇ x ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ x ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
x plus x plus x plus x plus x is 360 degree, 6 is equal to 360 degree, or x is equal to 360 degree, or 6 that come equal to 60 degree. It means exterior angle is equal to 60 degree. अच्छा जे ये इंटीरियर फाइंड आउट करना तो की करांगे? देखो ध्यान ਨਾਲ देखो आ एक्सटीरियर है टोटल 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक्सटीरियर ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सटीरियर ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਚੇਗਾ? ਬਾਕੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ. ਇਟ ਮੀਨ measure of interior angle of a regular polygon is 180 degree minus 60 degree that come equal to 120 degree. इन बड़ी सिंपल जी क्लियर गल हो गई. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. बेटा टेक्स्ट बुक दी एक्सरसाइज 3.2 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ. फाइंड x as we know sum of the exterior angles are equal to 360 degree. एक एंगल दिता है 125, एक दिता है x, एक दिता है 125. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 360. x is equal to 360 minus 250 degree is equal to 110 degree. Very simple, easily ਅਸੀਂ find it. ਇਹੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ. we know the sum of the interior angle is 180 degree. ਦੋ ਐਂਗਲ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ easily find out ਕਰ ਲੈਂਦੇ. Find the measure of exterior angle of a regular polygon of the 9 sides. ਜਿਹਦੇ 9 ਸਾਈਡ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਇਜ਼ 360 ਡਿਗਰੀ. ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਹੈ 9 डिवाइड कर लो, सिंपल गल. इट मीन 40 डिग्री. 9x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 369 क्योंकि कितनी साइड सी 9. मान लो एक एंगल x हो तो 9 एंगल मिल गए x x x प्लस 9x इक्वल इक्वल टू 40 डिग्री. ऐसे तरीके ना 15 साइड हो तो 15 एंगल हो गए x x x 15x इज इक्वल टू 360 और 15 इज 24 डिग्री. यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री. एक और एग्जांपल हम लेने हैं. How many sides of a regular polygon have if exterior angle 24 degree? Exterior angle को पता 24 डिग्री है. दोस्तों साइड कितनी होंगी? वेरी सिंपल. टोटल 360 है, 24 ने डिवाइड कर लेना. 24 ने डिवाइड किया इट कम इक्वल टू 15 साइड. वेरी सिंपल. यानी नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई है इस रेगुलर पॉलीगॉन दी? 15 साइड. अब तो उलट चलिए, इफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 165 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇੱਥੇ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ 15 डिग्री. ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਮ ਬਣ ਗਿਆ. एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री पता है बनू. नंबर ऑफ साइड की आएगी 360/15 यानी कितने साइड हो गया? 24 साइड. 24 पुजामा जड़िया एरिया हो गई. छोटे टेक्निकल दे सवाल ने दो, 5th और 6th सम है. 5th ए दी स्टेटमेंट कहती है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22? कि 22 डिग्री एंगल दे नाल कोई रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते एक्सटीरियर एंगल में? नो. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए. रेगुलर पॉलीगॉन है, सारे एंगल बराबर होने चाहिए और रेगुलर जी पॉलीगॉन है ਉਹਦੇ एक्सटीरियर एंगल ਦਾ समथिंग 60 डिग्री है. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 22 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ 22 डिग्री ਹੋਵੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੋ. ਜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ 158 ਤੇ 158 ਵੀ 360 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ having 22 degree as exterior or 158 22 as a interior angle. 6th sum की कहता है, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? minimum interior angle की केड़ा चाहिए है for a regular polygon? that is the equilateral triangle that is 60 degree in case of इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल केड़ी है जेडी तीनों साइडा बराबर ने, तीनों साइडा बराबर ने, तीनों एंगल बराबर ने, दैट इक्वल टू 60 डिग्री. और ऐसी तरीके ना एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम हुंदा दैट इज वही 180 दे विचों 60 माइनस करता 120 डिग्री.
यानी in case of equilateral triangle, the maximum exterior angle is 120 degree and maximum interior angle is 60 degree. बेटा ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਸਮਲੰਬ हिंदी च समलंब कहने हैं पंजाबी च समलंब कहने हैं इज ए quadrilateral with a pair of parallel sides यानी one set of sides are parallel to each other but not equal remember and other set of the sides are not parallel to here AB parallel to DC but AD is not parallel to BC. Second is kite patang having four sides and exactly two distinct consecutive pair of equal length. For example, here DC or BC are equal and AD or AB are equal. ਇਹ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੂ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ पैरलोग्राम भी कहते हैं समांतर चतुर्भुज कह देते हैं हिंदी पंजाबी च भी समांतर चतुर्भुज कह देते बेटा की चीज है इज क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel to each other और देखो ध्यान ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ opposite sides of equal length ਇਹ ਜਿਹੜੀ opposite sides ABCD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ BC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ AD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ and second property opposite angle are equal angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D and the third property is the diagonal of parallelogram देखो diagonal है AC और BD they are diagonals of parallelogram bisect each other at point of intersection that is O that is one of the important property of the parallelogram ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 3.3 ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ एज ABCD से पैरेललोग्राम है वन एंगल 100 डिग्री इज गिवन और बाकी तीन एंगल XYZ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ एंगल Z plus एंगल B that's equal to 180 degree sum of corresponding angles is 180 degree angle A plus angle 100 is equal to 180 degree angle A is equal to 180 minus 100 that is equal to 80 degree और ऐसा ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਗਲ Z ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ X ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ B ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ Y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ A is equal to angle C angle B is equal to angle D easily we can solve the sum here is again parallelogram is given ABCD ਦੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਂਗਲ that is 30 degree ਔਰ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ as ABCD the parallelogram and angle CBO is 30 degree देखो एक ट्रायंगल बन गई COB ट्रायंगल बन गई ए 30 डिग्री ए 90 डिग्री और Y तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का 180 C 90 plus 30 is equal 180 एंगल C आ गया 60 डिग्री 180 120 घटाते 60 डिग्री और ये भी देखो जे दो पैरेलल लाइना ने उन्होंने एक ट्रांसवर्सल लाइन कट दी है तो एंगल Y is equal to एंगल Z alternate interior angle और एक बराबर होंगे ने F60 है ते Z भी कितनी डिग्री हो गया दैट इज आल्सो 60 डिग्री ए 90 है ते आ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए वैसे तो पता है कि दोनों 90 डिग्री से बाइसेक्ट करते हैं लेकिन देखिए तो दो क्रॉस लाइन एक दूसरे को कटती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन ते है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे ने भी किसी भी लॉजिक ना तुम इनू कर सकते चौथा सम ABCD पैरेललोग्राम दिता है एंगल B पता है X Y और Z करने देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल एंगल B इज इक्वल टू एंगल D
ਇਹ 80 ਹੈ ਤੇ ਇਹ y ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪੋजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंगल y किहदे बराबर आ गया 80 डिग्री ਦੇ एंगल b किहदे बराबर एंगल z ਦੇ देखो ਇਹ दो पैरेलल लाइन है उन्होंने एक लाइन कट दी है कॉरस्पोंडिंग ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ वो बन गए बराबर x plus b is equal to 180 सॉरी ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾबर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਥਰਡ ਦੇਖੀ x ਕੱਢਣਾ है x plus b ਇਹ 180 ਦੇ ਬਰਾबर है x plus 80 180 mean x ਆ ਗਿਆ 100 डिग्री इस तरीके ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेटा एग्जांपल एक और करते हैं एक्सरसाइज दी वो कह रहे कि ये अपोजिट एंगल ਦਾ ਸਮ ਵੀ 180 डिग्री है कि ਉਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈ अपोजिट एंगल ਦਾ ਸਮ ਤਾਂ 180 है पर ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ नहीं है इट मीन इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम सेकंड केस च कहता है एबीसी इज नॉट अ पैरेललोग्राम कहता जो दी ऑपोजिट साइड दसो दी हुई है एक साइड 8 है ए बराबर है ए 4.4 है 4 है इट मीन ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी कीती थी कि जेड़ा पैरेललोग्राम है ओदी ऑपोजिट साइड जेड़ियां ने ओ की होनी चाहिए ने इक्वल होनी चाहिए ने थर्ड कहता जे एक एंगल ए 70 है दूसरा 85 है ए क्वाड्रिलेटरल है अगेन इज वेरी मच क्लियर कट हियर ऑपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल इट मीन इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम हुन फोर सम च सानू एक चीज देखदा है कि जे उन्हां दे ऑपोजिट एंगल बराबर होण तां ओ क्वाड्रिलेटरल जेड़ा पैरेललोग्राम हुंदा है नो जरूरी नहीं है एबीसीडी दे क्वाड्रिलेटरल जिहदे दोनों ऑपोजिट एंगल बराबर हो गए पर एक पैरेललोग्राम नहीं ऐसे तरीके ना फिफ्थ सम को है द एडजेसेंट एंगल यानी जिन्हें लागवें कोण ने एक पैरेललोग्राम दे और 2:3 विच हैं बाकी कोण पता करो सानू पता है लेट एंगल ए बी 2x एंगल बी बी 3x सानू यह पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री 2x plus 3x is equal to 180 degree 5x is equal to 180 degree x आ गया 180 बटा 5 यानी 36 डिग्री x पता लग गया एंगल ए पता लग गया 2 into 30 72 डिग्री एंगल बी पता लग गया 3 into 36 108 डिग्री और देखो दादा भी पता है एंगल ए is equal to एंगल सी एंगल बी is equal to एंगल डी because the opposite angle of a quadrilateral are equal इस तरीके ना एंगल ए is equal to एंगल सी is equal to 72 डिग्री एंगल बी is equal to एंगल डी is equal to 108 डिग्री बेटा 3.c एक्सरसाइज ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 70 ਡਿਗਰੀ ਦਾ HOPE ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਜੀ ਹੈ 70 ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਐਂਗਲ HOP ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 180 - 70 ਬਰਾबर 110 डिग्री ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ एक्स के बराबर होगा क्यों क्योंकि सानू पता है पैरेललोग्राम दे विच ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल यानी एंगल एक्स आ गया थाडे कोल 110 डिग्री हुन एंगल 40 है एंगल वाई भी 40 होगा किवें ईपी समानांतर एचओ है और पीएचओ नु कटदी है ए आ गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एचपीओ भी किदे बराबर आ गया 40 डिग्री हुन देखिए बेटा Z कढ़ना देखो सानू पता है जेडे एडजेसेंट एंगल होंदे ने क्वाड्रिलेटर दे उन्हां दा एंगल दा सम 180 डिग्री हुंदा है एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री ए दो एंगलां च वंडिया होया है EHP प्लस PHO प्लस POH इज इक्वल टू 180 डिग्री 40 प्लस Z प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री Z आ गया 30 डिग्री इस तरीके इजीली ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ XYZ ਜਿਹੜੇ फाइंड आउट कर सकते हैं एक एग्जांपल हो रहा है सारे कोई क्वाड्रिलेटर दिते GUNS देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3y - 1 = 26 इट मीन इथों y निकल गया 3y = 36 + 1 y = 27/3 यानी 9 y आ गया 3x = 18 इट मीन x = 18/3 दैट = 6
वेरी सिंपल। ऐसी तरीका प्रॉपर्टी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आ देखो दो डायगोनल आर एन और यू एन आपस में बाइसेक्ट करते हैं यू ओ पॉइंट से। ए हिस्सा 16 है, ए हिस्सा x प्लस वाई, इट मीन x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा 16 दे। ए y प्लस 7 के बराबर हो जाएगा 20 दे। इट मीन y के बराबर आ गया 20 माइनस 7, 7 उधर चला गया इज इक्वल टू 30। y 13 आ गया, x प्लस वाई पुट कर दिता, x आ गया। यानी प्रॉपर्टी की हेल्प के नाल असी ईजिली सम नू सॉल्व कर लेने। 10 सम है, देखो KLMN एक ट्रेपीजियम है, क्लियर। सानू यह एंगल दिता है 80 डिग्री और KL जेड़ा MN दे पैरेलल है, सानू पता है ML जिहड़ी है एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिहड़ी दोनों लाइनों नू कटदी है। ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। L प्लस M इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। 11 सम है, एक ट्रेपीजियम दिता है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। असी एदा एंगल लभना है, यह कितना होएगा। सानू पता है ABCD दे पैरेलल है, एंगल B प्लस C वही 180 जो इथे टर्म लगाई है 180 डिग्री, इट मीन 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल सी बराबर है 180 120 घटाए 60 डिग्री। एक लास्ट सम है इस एक्सरसाइज 3.3 का। यह फिगर सम दी है PQR एक ट्रेपीजियम है, एंगल 130 डिग्री सानू दिता है एज PS पैरेलल टू RQ एंड एंगल Q इज 130 डिग्री। सानू पता है ਇਹ दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ਅਸੀਂ कई जगह ਤੇ यूज कर चुके हैं। सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल जे 130 है ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 180 और 130 घटा देंगे बचेंगे 50 50 डिग्री। ਹੁਣ ਇਹ 90 ਇਹ 130 ਇਹ 50 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 डिग्री। इट मीन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। P 50 Q 130 ए 90 ते आ कितना बचया S इतना 270 यानी 360 माइनस 270 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज देखो जेडी प्रॉपर्टीज ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बेटा कुछ होर स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की गल करते हैं ਅਸੀਂ। एक क्वाड्रिलेटर साडे कोल रोम्बस सम चतुर्भुज क्वालिटी की है इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इक्वल साइड्स और कुछ कुछ काइट दे नाल मिलदी। गल करिए इस तरह की फिगर है साडे कोल ऑल साइड्स आर इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली ईच अदर है तो क्वाड्रिलेटरल सारी साइड्स इक्वल ने। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहना ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मेरे विच है ही क्योंकि पैरेललोग्राम में पहले गल क्लियर करते स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। एंड सेकंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर एक दूजे नू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते ने। क्लियर हो गया। एक और देखिए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज रेक्टेंगल। छोटी क्लास में बहुत सारा पढ़ा होगा। आयत इस आल्सो ए पैरेललोग्राम ऑफ खासियत की है विद इक्वल एंगल ऑल द एंगल्स आर इक्वल। चारों एंगल इक्वल कदों होंगे ने चारों का जोड़ 360 है 4 ਨਾਲ डिवाइड कर लो यानी 90 90 चारों एंगल कितने होंगे 90 90 डिग्री दे ਉਹ ਇੱਕ रैक्टेंगल बन गई। ਇਹਦੀ प्रॉपर्टीज की ने पहली गल सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ पैरेललोग्राम ਦੀ प्रॉपर्टीज ने ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहली गल ईच एंगल इज राइट एंगल एट 90 डिग्री और सारे एंगल जड़े ने बराबर ने। इक्वल एंगल की गल की थी कितने कितने डिग्री हो गए 90 डिग्री यानी राइट एंगल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी की है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर।
रोम्बस से भी गल की सी, इत्थे भी यही गल है कि डायगनल AC और BD बराबर ने और बाइसैक्ट करते हैं एक दूसरे। इत्थे खासियत सी वो परपेंडिकुलर बाइसैक्टर सी, इत्थे परपेंडिकुलर की गल नहीं है, लेकिन वो बाइसैक्ट करते हैं। स्क्वायर की गल करिए, वर्ग, ये बारे भी बहुत कुछ पढ़िया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी देखिए। एक ही स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिदी सारी साइडा की ने बराबर है, कोई शक नहीं। और यदि जिन्नियां पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ने, जिन्नियां रोम्बस की प्रॉपर्टी ने, जिन्नी रैक्टेंगल की प्रॉपर्टी ने, तिन्ना दी प्रॉपर्टीज एस स्क्वायर दे विच हन। यानी जे असी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कहने हैं पैरेलल वाली, वो भी ये विच है। जे असी रोम्बस की प्रॉपर्टी कहने हैं डायगोनल और परपेंडिकुलर बाइसैक्टर, वो भी ये विच है। जे असी आयत की जिहड़ी रैक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कहने हैं कि 90 डिग्री वाली, वो भी ये विच है। सारियां प्रॉपर्टीज जिहड़ियां स्क्वायर दे विच, सारियां जिहड़ियां पैरेललोग्राम, रोम्बस ते रैक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जिहड़ियां ने, वो सारियां इस स्क्वायर दे विच हन। बेटा 3.4 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और बड़ी टैक्नीकल जेड़े असी प्रॉपर्टीज पहले कीतियां ने रोम्बस दियां, रैक्टेंगल दियां, स्क्वायर दियां, पैरेललोग्राम दियां, उन्हां दे बेस्ड है। जे प्रॉपर्टीज असी ध्यान नाल समझ लईए तो समझो साडे सम सारे सॉल्व हो जाते। फॉर एग्जांपल इत्थे कुछ ट्रू एंड फॉल्स ने। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, फॉल्स। और उल्टे सही है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, इसका क्या हो गया, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ट्रू। असी पहले ठीक किया है कि सारे रोम्बस के विच पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंदी है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, नो डाउट, इट्स आल्सो ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सारे वर्ग जिहड़े है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे, गलत। जबकि असी क्या सीगा प्रॉपर्टी च देखिया ध्यान नाल कि पैरेललोग्राम, रोम्बस और रैक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी जिहड़ियां वो स्क्वायर दे विच होंदियां ने। आल काइट्स आर रोम्बस, फॉल्स, बट आल रोम्बस आर काइट, ऐ की है, ट्रू है। आल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ट्रू। आल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, ट्रू। ये असी पहले कर चुके। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की कहता है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, किहड़े-किहड़े क्वाड्रिलेटर होंदे जिन्हें चारों साइडां बराबर होंदियां ने? एक स्क्वायर जिन्दियां चारों साइडां बराबर ने, दूसरा रोम्बस समचतुर्भुज जिन्दियां चारों साइडां की होंदियां ने बराबर। 4 राइट एंगल किहदे च होंदे ने? एक हुणे पिछे प्रॉपर्टी च कीता, एक रैक्टेंगल दे चारों एंगल बराबर होंदे ने और एक स्क्वायर दे चारों एंगल बराबर होंदे ने। सिंपल, यानी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, जे सानू बेसिक प्रॉपर्टीज पता ने और ये प्रॉपर्टीज अगे जाके काम आउणी है, इनू रट्टा ना लाउणा, इनू सिर्फ सॉल्व करने वास्ते ना करो, इनू समझ के करो इस प्रॉपर्टी नू। चाहे थोड़ा जिहा पिछे जाके वीडियो नू दोबारा देख लो प्रॉपर्टीज नू, प्रॉपर्टीज तुहाडे दिमाग च आ गईयां, फिर तुहाडा कोई भी सम मुश्किल नहीं होएगा। हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर? बिकॉज स्क्वायर की 4 साइड है, पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड, इस करके वो क्वाड्रिलेटर है। हाउ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम? देखो ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम दी इक्वल होंदी है, स्क्वायर दी भी इक्वल होंदी है, और साइड जिहड़ियां ने वो पैरेलल और इक्वल ने, स्क्वायर दियां भी ते पैरेलल, इस करके वो की है पैरेललोग्राम है। हाउ स्क्वायर इज ए रोम्बस? रोम्बस दी की ऐसी प्रॉपर्टी की थी, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल लाइक रोम्बस, इस करके वो रोम्बस भी है। यानी स्क्वायर दे विच याद रखो सारियां प्रॉपर्टी जिहड़ियां ने पहले भी क्लियर कीता है वो आ जांदियां। ए रेक्टेंगल किवें है? ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर आल्सो इक्वल, ये तो बहुत सिंपल है, ऑल आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फोर्थ सम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਸ ਚ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਮੈਨੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਸਕੁਅਰ, ਰੋम्बस ਅਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। परपेंडिकुलर बाइसैक्ट ਜਿਹੜੇ बाइसैक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसैक्ट करते हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ रोम्बस ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ। आर इक्वल डायगोनल, इक्वल डायगोनल किहदे किहदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ? रैक्टेंगल ਦੇ ਤੇ पैरेललोग्राम ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन छोटा ਜਿਹਾ लिखा है, व्हाई रेक्टेंगल इज ए कनकेव क्वाड्रिलेटर? $1 मिलियन क्वेश्चन है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਾਈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਕਨਵੈਕਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, as both diagonals are inside the rectangle, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਨਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ABC, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ AC ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ A ਤੋਂ ਵੀ, B ਤੋਂ ਵੀ, C ਤੋਂ ਵੀ, D ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਟਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ, ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਸੈਕਟ। ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨ OA = OD = OB = OC, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੁਈਡੈਂਸ, ਉਹ A ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ B ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ C ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ D ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਥਸ ਵਰਲਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, mathsworld.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਥ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, 8th ਕਲਾਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।